No, 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 Speed. no. Don't go in that direction. Question कह रहा है कि you need, it's giving you big hints. It's giving you a hint that your speed is 24 meters per second and it's जी। constant and it हाँ needs the जी। power. Power का formula क्या है? What's the relationship of power? Power is driving वर्क डन होगा। force into हाँ। velocity. वेलोसिटी। velocity. Can you just find out the driving force? ड्राइविंग फोर्स। Straight horizontal road पे जा रहा है with हम्म। 650 and 150 friction, तो net force is zero because velocity is constant, acceleration zero, so net force is zero. ठीक है ना? Hmm. Acceleration zero है, therefore net force is zero. Yes or no? यस। Yes. बस फिर रह क्या गया फिर? So the driving force is equal to forces of friction, हाँ। 650 plus 150, which is 800. So 8 Multiplied by 24. multiplied by 24 gets you the power value. Easy. Now comes 19,200. 90,200, 19,000. 19,200 watts. The engine's power is suddenly increased to 40 kilowatt. Suddenly, एकदम से, they have changed the everything. ठीक है? सो बीच में जो टो बार है उसकी टेंशन निकालिए. Find the instantaneous acceleration of the car and the caravan and the tension in the tow bar. भाई, use the same formula. By a change of power, power is driving force into velocity. Velocity did not change. Velocity was kept at 24. What you get is a new driving force. What's the driving force? बताओ जी. सर जब एक्सेलरेशन आएगी तो वो तो चेंज होगी ना स्पीड. जब एक्सेलरेशन होगी तो चेंज होगी स्पीड, लेकिन इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, उस वक्त तो स्पीड चेंज नहीं हुई भी ना. ओके. गुड क्वेश्चन. सो ड्राइविंग फोर्स बिकम्स, व्हाट डज इट बिकम जी? 40,000 divided by 24 वन बताओ. थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन. ओ 67. अच्छा, ठीक है. All right, so that's your driving force. तो ड्राइविंग फोर्स माइनस एक्सेलरेशन निकालनी है ना. तो ड्राइविंग फोर्स माइनस फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस 800 एफ इक्वल्स इज एम ए, इक्वल टू एम ए से होगा कंबाइंड ना. मास 2250 इक्वल्स ए. पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकल आएगी इस तरह. क्या आ रही है जी एक्सेलरेशन? 0.39. 3875 भी नहीं. 3851. 3851. 9 नहीं बोलो, 3851 बोलो. ठीक है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऊपर 385. 9 से सब ओके. खराब हो जाएगा. सो देन दे से टेंशन. अब शायद टेंशन का जो सीन होता है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ, व्हाट इज इट बिकॉज ऑफ? इट्स बिकॉज ऑफ द टो बार खिंच रहा है, इधर है, यू बाई डायरेक्शनल टेंशन. टो बार वैन को ऐसे लग रहा है जिसको टेंशन आगे पुल कर रही है, कार को ऐसे लग रहा है टेंशन इसको रेजिस्ट कर रही है मोशन में. सो व्हाट वी एंड अप डूइंग इज, वी एंड अप breaking, breaking in the sense, not breaking, segregating.
हम इसको ना दो हिस्सों में देखना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि ओके, व्हाट इफ either you take the van or you take the car, which one do you want to take to get the tension in the tow bar? Tension ye T. So if you take the van, the equation is much simpler. T, tension in the tow bar, minus the resistance in the van. Van को resistance मिल रही थी 5, 150 कितनी? 150। शायद। वैन को मिल रही थी 150 हम्म, और mass of the van was 500 500 equals acceleration से। 500 and A you've already found out 0.385. हम्म इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, you get the tension. This is 5 marks. ठीक है? Then comes this part 342 है ये। 342. Okay, 342 को मैं इग्नोर कर रहा हूं, पहले ये देख लो. So these were two parts. पहले था 2 का, फिर 5 का, 7 वो हो गए, 3 मार्क्स इसके हो गए आखिरी पार्ट के. A car and caravan now travel up a straight hill inclined at an angle of sine inverse 0.14 to the horizontal at a constant speed. The car's engine is working at 31 kilowatt. The resistance to motion of the car and the caravan are unchanged. Find V. मैं solution दिखा देता हूं. ये याद है मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि 3 केस सिनेरियोज हैं, अप हिल, डाउन हिल और हॉरिजॉन्टल रोड के. ये अप हिल जा रहा है. एज इट गोज अप हिल, the velocity is what you need to find out. पावर दी भी है, ड्राइविंग फोर्स हो तो वेलोसिटी निकल आएगी. ड्राइविंग फोर्स is balancing the weight component as well as the total friction. जो weight component है वो mg sin थीटा होता है. ये तुम्हारे पास mg sin थीटा लिखा हुआ है. mg combined mass of the car and the caravan, sin inverse से तुम्हें sin थीटा निकाला है, और बाकी रेजिस्टेंसेस आर अनचेंज्ड, मींस कि वो 800 न्यूटन, फ्रिक्शन 800 ही है. तो ड्राइविंग फोर्स इज 800 प्लस mg sin थीटा. ठीक है? और तुम्हारे पास ये आ गया. फिर तुमने क्या किया? तुमने ड्राइविंग फोर्स और 31,000 को यूज करके वेलोसिटी निकाल ली. Is this clear? No difficulty in thought? ठीक है ना? 800 प्लस जो भी है 2250 टाइम्स 0.14 टाइम्स V, जो भी आया, that's your answer. ओके, अब आप निकल रहे हैं आगे. और ये है जी 3 मार्क का पहला पार्ट, 6 मार्क का दूसरा पार्ट और 3 मार्क का आखिरी पार्ट. 3 6 3 12 मार्क्स. ओके, पढ़िए क्वेश्चन प्लीज. हेलो अतीक, हेलो राहिम, राहिमा, तुम स्कूल नहीं आए ना? या आए थे? आए थे, अपना काम कर रहे थे. यस, वेरी वेरी तेज, वेरी तेज यू आर. सर ये नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेना बी का, वेरी गुड, फिर F6 म्यू आर लगा लेंगे. वेरी गुड. सो ये वाला काम हुआ है. ओ, ये मैं शो करूं ना करूं? ये सारा खुद करें दोबारा? चलो दोबारा करते हैं. सर खुद करते। ऑलराइट ऑलराइट. सो बी के ऊपर म्यू आर लगेगा. बी का वेट एक तो नीचे है 30 साइन अल्फा, और क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो दैट्स इक्वल टू फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन क्या है? म्यू आर. और आर क्या है? 30
कॉस अल्फा। 30 और 30 कट गया, म्यू कॉस अल्फा उधर जाके डिवाइड हुआ, tan अल्फा हो गया। म्यू इज tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 3/4। जी सो ये 3/4 प्रूव हो गया। पहला पार्ट डन, 3 मार्क्स मिल गए। आगे मूव करो। सही है। आगे, हाँ ठीक है ना, ये पहला पार्ट डन हो गया। हम अब आगे मूव कर रहे हैं। ओके, दिस इज डन। डन डील है ये वाला। ठीक है, ये डन डील है। सर ये म्यू कॉस 30 अल्फा से फ्रिक्शन लगी है हमारे, आई है ना हमारे पास, हाँ, कॉस उधर मैंने डिवाइड किया ना। और हमने दोनों को इक्वल कर दिया। हाँ, है ना, वेट कंपोनेंट को मैंने फ्रिक्शन के इक्वल किया है। हाँ वही 30। भी हाँ, अच्छा। सही है। फिर उसके बाद अब आओ तुम पार्ट बी पे। 6 मार्क्स है पार्ट बी। पार्ट बी को मैं पार्ट ए के करीब ले जाता हूं। वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये पार्ट बी पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट ये रोल होता है। 1.5 rolls, hits B, becomes a new particle. That new particle travels down and 4 मीटर कवर करता है in 2 seconds. The coefficient of friction between combined particle and plane B is 0.75. Find x. x कहता है निकालो। इंफॉर्मेशन जो बाद में दी है बड़ी क्रूशल है। जो B टू C की मूवमेंट है, जो B से C है मूवमेंट, उसको नोट करो। टाइम तुम्हें 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 मीटर्स, और यहां पे तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब बी से सी उसे का फ्रिक्शन है वो 0.75 है। अगर हम निकाल लें कि इसने किस आ, क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम। एक्सेलरेशन निकाल लें तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन निकल आ सकता है वेलोसिटीज का, या यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके यू निकल सकता है। इनिशियल स्पीड निकल सकती है कि जब ये कोएलिस हुए थे तो क्या स्पीड थी। वो स्पीड होगी तो फिर हम आगे और काम कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्सेस की इक्वेशन यूज करनी पड़ी। जो कंबाइंड मास है वो 3 और 1.5 का मिला के है, मींस के 4.5। तो 45 साइन ऑफ अल्फा माइनस म्यू आर, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 45 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4.5a। तो साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू, क्योंकि tan अल्फा 3/4 दिया हुआ है। सर, यस, फिर जीरो उसने मैं कहा है पॉइंट ना कि सिक्स जीरो उसने जीरो फोर 1.5 वाले को रिलीज किया, तो मोमेंटम निकाल के जब वो मिले आपस में, उससे हम इसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? हाँ वो क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं ना, वहीं पे फ्री वाला जाएंगे। रेस्ट पे है। मोमेंटम रेस्ट पे बी वाला है, ए की स्पीड नहीं पता ना जिससे वो हिट करता है, वही तो निकालना चाह रहे हैं हम। हाँ, वो तो पता ही नहीं है। तो साइन, वो हमें ये पता है कि साइन अल्फा की जगह प्लग इन किया 3/5 माइनस
0.75 इंटू 45 इंटू कॉस अल्फा प्लग इन किया 4/5। अब जरा मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या वैल्यू आ रही है इस तरह। वेट कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स एम ए। एफ नेट इक्वल्स एम ए की है, बेसिक काम की है, कोई ज्यादा हमने खिचड़ी नहीं बनाई। व्हाट्स द एक्सेलरेशन वैल्यू? ये सर ये अगर तो तुम लोग बहुत ही गंदी वैल्यू है ये मेरी। क्या आई है? 6.56 इंटू 10⁻³ तुमने कुछ तो तुम गड़बड़ है। तुमने तुमने अपनी मर्जी के अल्फा का साइन इनवर्स यूज किया ना? नहीं, तुमने नहीं। मेरा 3/5 और 4/5 नहीं यूज किया ना? और ये प्राइम एग्जाम्पल है अहमद, जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो जब ये मेरी बात नहीं मानेगा तो उसके साथ भी ये होगा। सर अल्फा हमने यूं नहीं निकालना था tan−1 3/4 से। मैंने यही तुम लोगों से रिक्वेस्ट की थी, जब इस तरह हो तो छोटा सा ट्रायंगल बना लो, साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल लो जिस तरह मैंने निकाला हुआ है। क्लास में मैं कोई सर मुझे चीज ऐसे फजूल नहीं बताता हूँ। ये इसलिए निकालने का फायदा है, अब जब तुम, अब जो मैंने नंबर्स दिए हैं, अब ये जो नीचे इक्वेशन बनी है ये वाली, इसके साथ सॉल्व करो जरा, क्या वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की? सर हमने बी से सी हमारे पास टाइम था, स्पीड थी, तो हमने निकालनी एक्सेलरेशन। टाइम था, है ना? स्पीड किधर है आपके पास? और स्पीड कह रहा हूँ, स्पीड कह दिया। फोर डिस्टेंस 4 था और टाइम 2 था। बस, और हमें पता था कि कुछ नहीं कंबाइंड पता? मैथ, बस यही पता है। कुछ नहीं पता आपको? एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इसीलिए आप, क्योंकि तो ये कुछ हमने ना इक्वेशन कौन होने सी से लगाई है? बेहतर। सॉरी? ये इक्वेशन वो है न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ ना, एफ नेट इक्वल्स है में हमने कौन सी कोई और इक्वेशन इस्तेमाल की अभी तक? ठीक है, 4.5 साइन थीटा। यार ये इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, मेरी बात ही नहीं मानते हो। अच्छा सॉल्व था सर, अभी कर सर देंगे कर सॉल्व। रहे हैं। तुम लोग ये मुझे बताओगे तो मैं आगे निकलूंगा ना। मुझे तो इसका आंसर पता है, मैं तो वेट कर रहा हूं तुम्हारी। ये क्या सर, इस दफा इसका आंसर 0 आए। अल्लाह, जीरो आ गया जी, जीरो आ गया। जीरो करेक्ट। एक्सेलरेशन इज जीरो। क्यों? क्योंकि आपने राउंड ऑफ नहीं किया। सही है। बिल्कुल ठीक आया। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हुआ कि इसकी जो, अब शाहजी एक्सेलरेशन जीरो के क्या मतलब हुआ, चलो जरा जल्दी से बता दो। सर जीरो मतलब कांस्टेंट स्पीड। वेरी गुड, विच मीन स्पीड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड आ गई 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मुझे कह रहे थे वो लगा दें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो लगेगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बी का मोमेंटम तो जीरो ठहरा। 1.5 जो पीछे से ट्रैवल करके आ रहा है उसका मोमेंटम नहीं मालूम। कंबाइंड मोमेंटम अब आपको मालूम हो गया कैसे। टोटल मास 4.5 है और कांस्टेंट स्पीड 2 से इससे मूव करना है। इससे आपको वेलोसिटी मिल गई ए की, और वेलोसिटी वो आपके पास आ गई ए की 9 डिवाइडेड बाय 1.5, विच कम्स आउट एज 6। यस? हेलो? जी जी सर, वी आ गया 6। 6। वी आ गया 6। अब मुझे बताओ, ये स्मूथ प्लेन बोला हुआ है इन्होंने, ए से बी स्मूथ प्लेन है, तो इसकी एक्सेलरेशन जी कितनी है? V6 है, U0 है। एक्सेलरेशन जो इसकी बन रही है वो है mg sin थीटा, mg sin अल्फा इक्वल्स ma।
1.5 1.5 कट गया, 10 टाइम्स साइन अल्फा इज 3/5, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास x निकलना है, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या हो गया 6 स्क्वायर, u स्क्वायर क्या हो गया 0 स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या हो गई 6, s डिस्टेंस निकल आया 3 मीटर्स डिवाइड करके। जी सर आ x गया। नहीं तो x तो आगे इसने मांगा क्या हमसे, x ही मांगा है, आ गया जी, एक्स ही मार मुबारक। गया सर। मुबारक हो जी, मुबारक। Find the total loss of energy of the particles from the time 1.5 kg is released until the combined particle reaches C. Total loss of energy 1.5 kg जो रिलीज हुआ है, अब देखो नीचे जब पहुंचा था तो उसकी एनर्जी हमें पता है, कंबाइंड पार्टिकल की एनर्जी एट सी पता है। तो जरा इसको मैं जूम आउट करता हूं, पार्ट सी का आंसर एनर्जी एट सी या काइनेटिक एनर्जी एंड में is half, combined mass is 4.5 and the velocity is 2 square। ये आ गया 9 जूल्स काइनेटिक एनर्जी। सर ये और तो बी से सी आई ना। नहीं नहीं, ओवरऑल एंड में ना भाई, लॉस ऑफ सर एनर्जी टू। चाहिए। टोटल एनर्जी शुरू में कितनी है, सर टोटल है ना 1/2, वन नहीं पॉइंट फाइव नहीं, इंटू सिक्स शुरू में ब्रो, शुरू में शुरू किधर सर, जब आपस में मिले थे तब। अंग्रेजी पढ़ो ना फिर दोबारा। फाइंड टोटल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द टाइम 1.5 kg is released हाँ। released is the शुरू। और सर जब रिलीज हुआ था तो उस पे उसकी 6 मीटर पर सेकेंड थी ना स्पीड। अरे थी नहीं उसकी स्पीड, वो तो एक्सेलरेट करके उधर पहुंच रहा है ना। किधर थी हाँ स्पीड, सॉरी सॉरी। हाँ नहीं जीरो थी थी, नहीं थी। क्या था उसका फिर, हाँ एनर्जी जीरो थी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। एनर्जी जीरो थी, कुछ तो एनर्जी हाँ थी ना, जीरो थी सर। कुछ तो एनर्जी थी ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाँ एनर्जी तो थी थी सर, ना कुछ उसकी। तो थी। हाँ वो कुछ क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। यस जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ना, एनर्जी। हमें ये एक्स और फोर वाला डिस्टेंस पता है तो हम उससे हाइट निकाल लेंगे ए जी और एक्स क्या ए है, की परमाणु। 6 निकाला सिक्स, है आपने, नहीं 3 निकाला है। 3 तो निकाले। 3 और 4 कितना होता है 7। 7। तो साइन हाइट ऑफ ए आपके पास आ गया 7 अल्फा, जो कि हम्म। बनता है 7 × 3/5। एग्रीड। तो पोटेंशियल एनर्जी ए का बना आपके पास एम, mass of A, G times height, 21/5। 4.2 है। 4 पॉइंट, हो हाइट बताई थी मैंने। अच्छा इन्हें मैं पूरा करता हूँ। हाँ। और बी की भी पोटेंशियल एनर्जी है उस टाइम, शाहजी बी की है पोटेंशियल एनर्जी की नहीं है। सर बी की है सर, वो जमीन से ऊपर है। वेरी गुड, हाइट ऑफ बी इज 4 sin अल्फा which is 4 × 3/5। सो 63 पोटेंशियल आई है पोटेंशियल एनर्जी ए की। कितनी आई है 63। 63। और बी की भी आप निकाल लो, लग गया 3 × 10 × 12/5। 72। 72 जूल्स। हाँ। तो है, क्या हुआ, अच्छा उसका वेट ज्यादा है ना, मैथ ज्यादा है। हाँ ठीक मैथ है। ज्यादा है, मैथ ज्यादा है। सो
लॉस ऑफ एनर्जी हो गया 72 प्लस 63 माइनस 9। करो जरा कितना बनता है। -9। हाँ 9 था ना उसकी एनर्जी नीचे, काइनेटिक। अच्छा। काइनेटिक है ना नीचे तो ऊपर जब वो लाइन। ये सी पे हम कह रहे हैं 9 है। हाँ हाँ सी पे 9 है, पोटेंशियल खत्म हो गया है, सिर्फ ग्रेविट वो हाँ काइनेटिक रह गया है, उसका डिफरेंस चाहिए ना। लॉस 126। 126 जूल्स। मुबारक हो जी, आपका पूरा एक पेपर खत्म हो गया। ये तो सर सर सॉल्व वो पेपर आप भेज देना, ठीक है। Reaches C. So what जी that means is that we need to consider what's happening. So at A, it wasn't moving, it was released from rest, so it had some potential energy. In this, and B also had some potential energy. So the system at this time has some potential energy. And potential energy's formula is mg. So at A, does it have zero kinetic energy? At A, it has zero kinetic energy. Agreed. Okay. Which is And why, C, it has zero potential energy. and at C in the end, it has zero potential energy, which is why we just use kinetic energy का formula half mv square. तुम्हारा आंसर खुद ही हो गया इसमें। सर मुझे बताएं कि एक ये मिनट, रुका हुआ था तो हमने कहा एक मिनट जी शान, तो do you get it? Is that clear? No, can you explain how Yeah, you solved it? yeah. So we solved for A, we found the height of A using sine ratio. Sine alpha is perpendicular over hypotenuse. So our hypotenuse length was 7. So we found the height of A, which is 7 sine alpha. And then we found potential energy of A, mgh. And then we did the same for height of B. B was 4 meters up the plane. So its height was Yeah. 4 sine alpha. And we found Okay. potential energy of B is mgh. We Okay. added these two potential energies up because that's the total potential energy in the system initially when the Okay. object at the top was released. Its speed was Yeah. 0. These two had this potential energy. So this is the energy in the system. And then when they hit coalesced and then went on to drop to level C, where the height is 0, the kinetic energy was half mv squared, combined mass times velocity squared. And we just subtracted them. This was the problem. Okay. Ji Shah ji, your Okay. question.